Today we'll study trigonometry. See, trigonometry is a very important chapter with respect to IIT. As such, not many questions come from trigonometry, but the formulas of trigonometry, they are very important, and in entire calculus they are used. So in that respect, trigonometry is very important. Regarding the formulas, don't worry, I'll tell you the tricks how to learn the formulas of trigonometry, so it won't be a problem for you people. Let's start with trigonometry. See, trigonometry is made up of three words: tri, gon and metron. Where tri means three, gon means sides and metron means measurement. Metron means measurement. So trigonometry is a branch of maths which deals with the measurement of a three-sided figure. And what is that three-sided figure? It's a triangle. So basically we deal with all the properties of triangle, the relationships and all that. The study of trigonometry is divided into four categories: phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. Phase 1 is compound angle, phase 2 trigonometric equations and inequations, phase 3 SOT and phase 4 ITF. तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 कंपाउंड एंगल में हम एक्चुअली बात करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बीच की रिलेशनशिप्स, व्हाट दे शेयर, द आइडेंटिटीज एंड ऑल दैट थिंग. In trigonometry phase 2 we tell you how to solve a trigonometric equation or an inequation. In trigonometry phase 3, which is SOT, I'll tell you how to solve a triangle. Solving a triangle means that if the three elements of a triangle are given, you can find the other three elements. So that is solution of a triangle and also the other properties of triangle. Then phase 4 is ITF. It is inverse trigonometric functions. Let's start with trigonometry phase 1, which is compound angle. So we'll start with phase 1. Compound angle. Compound angle we all know. Now there is a sense of an angle. If I measure an angle in anti-clockwise direction, it is taken as positive. तो anti-clockwise direction में थीटा पॉजिटिव होगा और अगर मैं clockwise measure कर रही हूँ थीटा तो थीटा नेगेटिव होगा. सही है? तो clockwise direction में नेगेटिव और anti-clockwise direction में पॉजिटिव. Now I am concerned about measurement of an angle. Measurement of an angle. Measurement of an angle. See, there are three systems which are devised for the measurement of angle. One is sexagesimal system, one is sexagesimal system, other is centesimal system, third is circular measurement. Out of this, the centesimal system is not in our course. So we'll study about sexagesimal system and circular measurement. So let's study sexagesimal system. Sexagesimal system. See, this is a very common system and we have studied about this. In this system we measure the angle in degrees. तो ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में इसको पढ़ रखा है कि एंगल इन डिग्रीज. Sexagesimal system says कि a right angle when divided into 90 equal parts, each part is 1 degree. Each part is 1 degree. तो 90, तो one right angle has 90 degrees. One right angle has 90 degrees. Then comes circular measurement. Circular measurement. देखिए सर्कुलर मेजरमेंट में क्या होता है. अच्छा, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन्हें हम सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्योंकि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ सर्कल. तो सर्कुलर मेजरमेंट में क्या है, देखिए जैसे सपोज करिए ये मेरे पास एक सर्कल है विद सेंटर एट O. ठीक है. अच्छा, ये मेरे पास कोई पॉइंट A है और ये हो गई मेरे पास आर्क AB. ये जो आर्क AB है, दिस इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर. Say length of arc AB is L. Now the length of this arc is L and R is the radius of the circle. So in circular measurement the angle is measured in radian. So this says तो angle in radian is equals to length of arc upon radius of circle. तो ये फॉर्मूला आता है theta is equals to L by R. Radius का जो सिंबल है that is small c. तो एंगल इन रेडियन इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल. तो 1 रेडियन एंगल कब हो जाएगा, तो
तो 1 रेडियन एंगल तब हो जाएगा जब L और R इक्वल हो जाए। तो हम कहते हैं 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये 1 रेडियन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कम्स रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। भाई जैसे आप सपोज करिए, मान लीजिए रूम को मेजर करना है तो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। कोई उसे इंचेस में मेजर कर सकता है, कोई उसे फुट में मेजर कर सकता है। तो उनमें कन्वर्जन यूनिट होती है, कैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से एंगल्स में भी होता है। हमने 2 सिस्टम पढ़े हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस। अब कैसे एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स कंसीडर, तो ये डेफिनेशन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो थीटा की डेफिनेशन इज L by R। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करो थीटा इक्वल्स टू L by R, मेक श्योर कि थीटा आप हमेशा रेडियंस में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, सपोज करिए मैं एक सेमी सर्कल कंसीडर कर रही हूँ। दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज सेंटर O, ये A। तो आर्क AB जो है वो एक सेमी सर्कल है। तो ये एंगल जो हो गया डिग्रीज में हुआ 180 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे रेडियंस में निकालना चाह रही हूँ तो आई यूज दिस फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ आर्क तो कितना हो गया, पाई आर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। तो 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। तो दैट इज 1 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन 180 रेडियंस। और 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन विल बी 180 अपॉन पाई डिग्रीज। अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रखी जाए तो जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज 57.18 डिग्रीज विच इज नियरली इक्वल्स टू 57.2 डिग्रीज। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.2 डिग्रीज। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.2 डिग्रीज। ये रिलेशन हमको याद रखना है। अब जैसे कभी ऐसे लिखा हो sin 2, तो sin 2 का मतलब है sin 2 रेडियंस। तो लगभग कितने डिग्रीज हो गया ये, तो दिस इज साइन ऑफ 2 इंटू 57.2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज लगभग साइन ऑफ 114.4 डिग्रीज। तो ये हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ बहुत ही बेसिक हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे 30 डिग्रीज को हम रेडियन में क्या बोलेंगे, तो 30 डिग्रीज इज पाई बाय 6, 60 डिग्री इज पाई बाय 3, 45 डिग्रीज इज पाई बाय 4। ये हो गया। ठीक है, 45 डिग्रीज इज पाई बाय 4। तो ये बेसिक्स हैं, अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे देखना हो कि 120 डिग्रीज कितने रेडियंस में है, तो अगर मुझे ये बेसिक याद है, से 60 डिग्री वाज पाई बाय 3, तो 120 इज 2 इंटू 60, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3। अगर आप ये नहीं लिखना है, मतलब डायरेक्ट याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 120। तो आप ये काटोगे अब 60 से, तो इट विल बी 2 पाई बाय 3। तो आई सजेस्ट यू पीपल कि आप ये बेसिक्स याद रखो और इससे कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा भी ट्रू है। जैसे मान लीजिए मुझे 11 पाई बाय 3 करना है कि ये डिग्रीज में कितना है, तो पाई बाय 3 60, तो 60 इंटू 11 विल बी 660 डिग्रीज। अच्छा, नहीं तो आप फॉर्मूले से करते तो रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अभी 180 ऊपर आएगा और पाई नीचे आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पाई से पाई गया, ये इट विल बी 660। तो इससे जल्दी हो जाएगा। तो ये आप बेसिक्स याद रखिए, 30 डिग्री इज पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3, 45 डिग्री पाई बाय 4, 90 डिग्री इज पाई बाय 2, 180 डिग्री इज पाई। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया। अच्छा, इन पे अब जो ये एक तो हो गया। अच्छा, जो एक कॉमन क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ा उस पे बन सकता है इज, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सपोज करिए एक पार्क जो है वो ट्रायंगल की शेप में है, एक पार्क ट्रायंगल की शेप में है और उसके जो डायमेंशंस हैं दे आर 6 मीटर्स, 7 मीटर्स एंड 8 मीटर्स। ये उसके डायमेंशंस हैं।
अब एक आदमी जो है इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरीके से दैट ही इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन। अब देखिए, जैसे एक आदमी हमेशा 1 मीटर की दूरी पे चल रहा है तो यहाँ तक तो सही है। अब हमेशा 1 मीटर की यूनिट दूरी पे चल रहा है तो जैसे ये इस कॉर्नर पॉइंट पे आएगा तो ये ऐसे डिस्टेंस ना जाकर ये एक आर्क लेगा। क्यों? क्योंकि तभी सारा डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। अगर इसने ऐसे कर लिया तब ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्क फॉर्म में आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, अगेन इट विल फॉर्म एन आर्क, ऐसे यहाँ पे आर्क बनाएगा ये, और ये, तो ये हमारी फिगर बन गई। ठीक है, अच्छा ये डिस्टेंस हमेशा कितना, ये मैं रेक्टेंगल्स कंप्लीट कर देती हूँ 90 डिग्री बना के। ये हमारे रेक्टेंगल्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री, डिस्टेंस इज 1 मीटर्स, 1 1 90 डिग्री 90 डिग्री 1 मीटर 1 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या है, तो अच्छा ये डिस्टेंस 7 मीटर हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, यानी उसने 14 प्लस 7 21 मीटर्स तो कंप्लीट कर, 21 तो करा ही करा है, प्लस लेंथ ऑफ दीज आर्क्स। तो L1 मान लिया, इसे L2 मान लिया, इसे L3 मान लिया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज 21 मीटर्स प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3। अब लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू L बाय R। अब देखिए तो L विल बी थीटा इंटू R, रेडियस जो है वो 1 यूनिट का है। अगर मुझे बस ये थीटा पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये थीटा और ये थीटा इक्वल नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो फिर देखो ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंटायर इज 360 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 180 तो चला गया, तो इनका सम अब कितना होगा 180 डिग्रीज। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो फिर ये एंगल विल बी पाई माइनस अल्फा। जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू L बाय R, थीटा हमेशा रेडियंस में रखना है हमें। तो L1 हो गया मेरे पास पाई माइनस अल्फा इंटू 1 विच इज पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली ये एंगल अगर हम बीटा ले रहे हैं तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस बीटा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम ये एंगल गामा ले रहे हैं तो दिस एंगल विल बी पाई माइनस गामा। तो हम अब लिख सकते हैं, तो L1 विल बी पाई माइनस अल्फा, L2 विल बी पाई माइनस बीटा, और ये हो गया पाई माइनस गामा, क्योंकि रेडियस जो है वो 1 है। तो ये हमारे पास हो गया 21 प्लस 3 पाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज पाई, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो 21 प्लस 3 पाई माइनस पाई इज 21 प्लस 2 पाई meters. So this is our answer.